और एक बार नहीं, पहले एक बार आया था अभी, और एक बार हमारे बीच में आया इधर से, ये कायमराम से। और एक अच्छा बात ये है, एनडीसी का ही दोनों ग्रेजुएट है, मैं भी एनडीसी का ही हूँ। इज आल्सो फ्रॉम एनडीसी देहरादून वेयर आई स्टडी, he is also from NDC Dehradun. So we NDCs are here. So I request, I invite Gladwin and Marcus, please come and you can share the word of God. हिंदी बाइबल, हिंदी बाइबल, हिंदी बाइबल एक एक्स्ट्रा हिंदी बाइबल। Good evening. Good evening. Praise Lord. Praise the Lord. Hope you all are doing good. आशा करता हूँ आप सब अच्छा कर रहे हो। I thank Jinsen sir and all the other faculties of this college for this invitation to be with you this evening and to share from God's word. और जिनसन सर और जितने भी आपके शिक्षक गण हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज हमको यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए। And I am also so happy to be back here with you once again this evening and to speak God's word to you. एक और बार इस सुंदर शाम के समय आप सबके बीच आने में परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। We got an opportunity to discuss some things in the class, I think last week, and we discussed about Nehemiah and the model of Nehemiah, missional model of Nehemiah towards an enlargement that took place in the life of Nehemiah. और जब मैं पिछले बार आया था आप सबके बीच में, हमने क्लास के द्वारा हमने सीखा कि कैसा नेहमिया का जीवन एक मिशन के लिए कितना जरूरी है और कितना मिशन में जो बढ़ोतरी होता है उसके लिए कितना जरूरी होता है। We know that we live in a time of uncertainties. We don't know what is happening around us. आप सबको पता है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है। We know wars are increasing, the wars between countries are increasing day by day. आप सबको पता है युद्ध चल रहा है काफी सारे देशों के बीच। Last day we were struck with the news of a flight crash that happened in Ahmedabad. और आपने सुना होगा पिछले दिनों में एक विमान क्रैश हो गया था और दुर्घटना हो गया था और काफी सारे लोग की जान चली गई थी। And I got an opportunity to meet a youngster last week and he asked me a very important question and that struck my mind and that caught my attention last few days. और पिछले दिनों की कुछ बात है मुझसे, मैं एक जवान से आपके तरह एक जवान से मैंने बात किया और उसने मुझसे एक सवाल को पूछा और उस सवाल ने मुझे एक चिंता में डाल दिया। He asked me a question. Almost 242 people lost their lives. Medical college students lost their lives. He asked me, where is God? और उसने मुझसे ऐसा सवाल पूछा, करीबन 240 लोगों के आसपास लोगों ने अपना जान गवा दिया है, इन सब के बीच में परमेश्वर कहाँ पे है? When all these things are happening around us, when all this chaos is happening around in our lives, and in the midst of all this, one question that arises in all our mind: where is God? What God is working in all these things? और जब हम भी सोचते हैं, जब इतने सारे गड़बड़ियां हो रही है, इतने सारा दुर्घटना हो रहा है, लोग परेशानी में हैं, लोग मर रहे हैं, इन सब के बीच में हम भी सोचते हैं और हम भी सवाल करते हैं कि परमेश्वर कहाँ पे है? I hope many times we also go through this question, we also go through this thought, where is God in my life when I go through many difficult situations, a period of silences, when there is nothing seem to be happy, where is God? How God is working in throughout all these things? और हम जब उसको अपने जीवन में हम लागू करते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है, हम भी ये सवाल करते हैं, परमेश्वर आप कहाँ पे हो? आप मुझे देखते नहीं हो क्या? Gospel of Matthew is written in such a similar context. और जो मत्ती रचित सुसमाचार है इसी संदर्भ में लिखा गया है। There was a war taking place when Matthew is writing this gospel. और जब मत्ती अपने सुसमाचार को लिख रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। I hope most of you are aware about those things, about the background of Gospel of Matthew. जैसे कि आप सब अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबको पता होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका पृष्ठभूमि क्या है। There was a Roman Jewish war which was taking place during those time. उस समय एक यहूदी और यहूदियों के बीच में एक युद्ध चल रहा था। And this Roman army marched into the houses of Galileans and thousands of youths were killed. और जो रोमी लोग हैं, जो रोमी सैनिक लोग हैं, वो यहूदियों के प्रति इतने आक्रामक हो गए थे कि उस समय काफी सारे जवानों को ये रोमी लोगों ने मार दिया था। And mothers were fleeing for their lives from those regions. और इन सब के बीच में और जो माताएं थी, जो मम्मी लोग थे, वो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए वो लोग भाग रहे थे। And while they were running,
they lifted their eyes up to heavens and they asked a very similar question, where are you, Lord? और इन सब के संदर्भ में, इन सब के बीच में उन माताओं ने अपने आंखों को स्वर्ग की ओर लगाया और ये सवाल पूछा कि परमेश्वर आप कहाँ पे हो? They asked this very similar question, where are you, Lord? और उन्होंने यही सवाल पूछा कि परमेश्वर आप कहाँ पे हो? And Matthew is addressing this community, this group, with the message which is written in the Gospel of Matthew. और उसी समय में मत्ती रचित सुसमाचार अपने सुसमाचार को लिखता है और ऐसे समुदाय को वो उत्साह देता है और प्रेरणा देता है अपने सुसमाचार के द्वारा. And that's why Matthew begins his gospel with the very powerful statement that he will be called Emmanuel. इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार अपना सुसमाचार शुरुआत करता है इम्मानुएल से, इम्मानुएल शब्द से कि ये परमेश्वर हमारे साथ है. And Matthew ends his gospel with the very same affirmation from the mouth of Jesus, I will be with you unto the end of the ages. और अपना जो सुसमाचार जो इस प्रकार मत्ती खत्म करता है जहाँ पे यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं तुम्हारे जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा. When the community is faced with a question of where are you, Lord, Matthew is addressing the very same community with the answer, He is Emmanuel. और जब ऐसा जो समय का समुदाय है मुश्किल अवस्था से होकर गुजर रहा है, उस समय मत्ती अपने सुसमाचार की तरह ये बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे In our lives also, whenever we go through such situations, difficulties, all this chaos, one thing that we should always remember is He is with us. He is not far away from us. He is working with us. In the midst of all these things, He is Emmanuel. और जब हम हमारे जीवन में जब परेशानियां आती है, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा, तो हमें ये सोचना और ये मानना है कि उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ है. This evening we will be meditating on a very familiar passage from the Gospel of Matthew. और आज हम एक सुपरिचित जो हम सबको मालूम है उस अध्याय से हम मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार से. I just want to draw your attention to Matthew chapter 15 verse 21 to 22. और मैं आज आप सबका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 21 पद से 21 to 22 और 21 से 22 तक. मत्ती 15, 21 और 22 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. 15 to 21, 22. यीशु वहां से निकलकर सूर और सीधा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है. This unit goes from verse 21 till verse 28. और जो ये पूरा पद्यांश है जो आज हम देख रहे हैं वो 21 पद से 28 पद तक जाता है. This is one of the debated passages around all the theologicals, those who are studying the theology. और जब हम धर्म विज्ञान अभी पढ़ रहे हैं, ये धर्म विज्ञान समुदाय में ये ऐसा एक पद है जिसका बहुत वाद विवाद होता है. Where we can see a mother approaching Jesus with a very urgent need and Jesus responding to her in a very different, unique way. और आप सब देख सकते हैं एक माता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है और ये बोलती है कि बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से आप मेरी बेटी के पास जाएं. Somewhere we can see Jesus behaving very cruel to someone. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत अलग रीति से, मतलब बहुत गंभीर रीति से यहाँ पे वो बर्ताव को कर रहे हैं. Where Jesus comparing this person who came to Jesus to a dog. और ऐसा आप बोल सकते हैं कि इससे मिलता है कि यीशु मसीह ऐसे बात कर रहे हैं कि उस प्रकार जैसे एक कुत्ते से बात करता है. There are lot of interpretations about this passage where people says that some theologians says that Jesus was having a missional priority for Israel and many such things are there. और यहाँ लोग ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह इस्राएल के लिए एक मिशन था उनके मन में, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. And there are a group of people who says that this faith of the women opened the eyes of Jesus. और कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इस स्त्री का विश्वास था उसने प्रभु यीशु मसीह के आंखों को खोल दिया. And this passage literally caught my attention as I was reading this passage, and I was also meditating and pondering upon this thought. Why such a thought is coming out of Jesus? Why such a conversation is happening there? और जब मैं इस पद्यांश को पढ़ रहा था, मैं जब इसको मनन कर रहा था, तो ये पद्यांश मैंने भी ये सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह इतने क्रूअल रीति से, इतने विपरीत रीति से क्यों ऐसा बर्ताव को कर रहे हैं. One thing that I just want to say is that as students who are studying Bible, as people who are studying God's word, one thing that we should always understand is that
to understand some of the God's work, we need to understand the purpose behind it. मैं जैसे कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप मनन करते हो, उसमें ध्यान लगाते हो, तो जब आप प्रभु यीशु मसीह का वचन जब आप ध्यान करते हो, मनन करते हो, आपको ये सोचना है जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कर रहा है उसके पीछे एक उद्देश्य है। God have clear purpose behind everything that He is doing. और प्रभु यीशु मसीह का एक साफ उद्देश्य है जो कुछ भी वो करता है। Nothing is accidental. He is clearly designing something. और कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि दुर्घटना के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं, परंतु जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा प्लान। This is also such an episode designed by Jesus to communicate some of the very important spiritual truths. और जो पद्यांश हमने पढ़ा है वो भी उसी प्रकार का एक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले से सोच के रखा है। We know that in verse 21 we read Jesus entering a Gentile region. Jesus entering into a Gentile region. और आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे समुदाय में जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग दूसरे रिलीजन को विश्वास करते हैं। And the Gospel of Matthew gives utmost importance to these Gentiles. और यहाँ पे देख सकते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो जो अन्य जाति लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा उनके लिए लिखा गया है। It begins with the genealogy of Christ where we can see the two Gentile names, Ruth and Rahab. और यहाँ पे जब आप पहला मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पढ़ेंगे हम वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग के नाम दे रखे हैं, वहाँ पे दो अन्य जाति के स्त्री के नाम दे रखे हैं, जिसका नाम रूथ है। Then we can see the narration of the Roman centurion who came to Jesus in chapter 8. फिर आप देख सकते हैं एक रोमी जो जन है वो 8वें अध्याय में हम देख सकते हैं। And then we can see a Roman soldier's confession in chapter 27 that you are the son of God. और जब 27 अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे एक देख सकते हैं एक रोमी सैनिक कैसे ये मान रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। So Matthew in general has a Gentile importance. और हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार को मत्ती को एक पूर्ण रूप से अन्य जातियों के ऊपर ज्यादा उसके लिए लिखा गया है। So there was a Gentile inclusion throughout the gospel. Then why Jesus is telling here in verse 24, I was sent only to the lost sheep of Israel. और जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में अन्य जातियों के लिए ज्यादा प्रीति रखे हुए लिखा गया है, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं मैं सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आया हूँ। This chapter begins with a conversation regarding purity and impurity. और जब ये अध्याय जो हमने 15 अध्याय पढ़ा है वो शुरू होता है एक साफ जीवन, एक शुद्ध और एक अशुद्ध जीवन जी। Where the disciples of Jesus were questioned for not washing their hands before eating food. और जहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग उनको ये प्रश्न उठाया गया उनके प्रति कि उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोया। And the response of Jesus is recorded in the first 14 verses. और जो पहले 14 पद हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह का उत्तर लिखा गया। Where Jesus says that we should more prioritize the commandments of God. और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसा बताते हैं कि हमें ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना चाहिए। And Jesus says that what comes from the mouth is more important than what goes inside. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा बताते हैं जो हमारे मुंह से जो बाहर आता है वो ज्यादा जरूरी है ना कि जो हम अंदर लेते हैं। And he also says that whoever planted by the Father will remain. और वो ऐसा पता है जो भी परमेश्वर के द्वारा लगाया गया है वो सदा बना रहेगा। And verse 21 that we read says that Jesus entered into the land of Tyre and Sidon. और जब हमने 21 पद पढ़ा हमने ऐसा पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया। It was not an accidental coming where Jesus was going through some place and he just thought of visiting that place, but it was an intentional coming of Jesus. और जब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे ही वहाँ पे नहीं गया, कुछ ऐसे दुर्घटना ग्रस्त वहाँ पे नहीं गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो भी जगह वो जाते थे उसके पीछे एक उद्देश्य था। Very purposefully entering that region. और एक उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह उस प्रदेश में जा रहे हैं। Matthew calls this woman as a Canaanite woman. Once we come to Mark, it is recorded as a Syro-Phoenician woman. जब मत्ती जब हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे कनानी स्त्री बताई गई है। जब हम मरकुस पढ़ते हैं वहाँ पे एक Syro-Phoenician woman के नाम से बताते हैं वहाँ पे। Looking at her life, actually she led a very terrible life. और जब हम उसके जीवन को देखते हैं, जब हम ये देख सकते हैं कि वो उसका जीवन बहुत परेशानी से वो जा रही है। In all the aspects of her life, she was an outsider. और अपने पूरे जीवन के जितना जीवन उसने जिया वो एक
एक बाहर से आई है ऐसा स्त्री थी। Religiously, she was a Gentile. और वो जो रिलीजन से जिसको वो मानती थी वो एक अन्य जाति थी। Culturally, she was a woman. और जो वहाँ का कल्चर था उसके She was a woman. और वो एक स्त्री थी। And ethnically, she was a Canaanite. और जो उसका एथनिक था वो एक कनानी थी वो। And we can see she is addressing Jesus as the Son of God. और हम यहाँ पे देख सकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बोलती है, दाऊद की संतान। And as I said, we can see two Gentile people in the Gospel of Matthew coming to Jesus with a need. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार में दो अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं अपने एक प्रार्थना को लेकर। First person was a centurion. और पहला एक रोमी था। That we see in chapter 8. और वो हम 8 पद में देख सकते हैं। But before this centurion approached Jesus, some Jewish elders came to Jesus, pleading, recommending the centurion. और जब हम उसको हम पढ़ते हैं, हम ऐसा देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब उस रोमी के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, वहाँ पे कुछ यहूदी लोग थे, उन्होंने ऐसा बोला कि उनको उसके साथ वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। And this Jewish elder says that he is deserving for that. He is deserving for you to do such a thing. और ऐसा यहूदी लोग ऐसा बोलते हैं जो उसके जीवन में हो रहा है वो होना बहुत जरूरी है। No, they says to Jesus that he is deserving for Jesus to do such a miracle in his life. और वो ऐसा बोलता है, यहूदी ऐसा बोलते हैं कि जो यीशु मसीह उसके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है वो जरूरी है। And they say that he loves our region, even though he is an outsider, he loves our people. और वो ऐसा बताते हैं अगर वो एक अन्य जाति है परंतु वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है। They also says that he built a synagogue, he built a church for us. और वो यहूदी लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने एक चर्च का स्थापना भी किया। But unlike this episode, there is no one coming to recommend for this Canaanite woman. परंतु जैसा उसके प्रति काफी सारे लोगों ने आवाज उठाया, परंतु ये जो कनानी स्त्री के लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाया। She came alone. वो अकेले आई। There was no quality said there. उसके जीवन में कुछ गुण नहीं था। She just stood there as an unworthy person. वो एक ऐसे स्त्री था जिसको कोई चाहता नहीं था। And what she said really caught my attention. और जो उसने बोला उसको मेरा ध्यान उसने आकर्षित किया। Lord, Son of David, have mercy upon me. हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया। There was nothing to say as her qualities. I have not done anything. I just want your mercy. और ऐसा उसने नहीं बोला कि she was not explaining anything about her qualities. She just asked God's mercy. और उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरे जीवन में ये सब गुण है, परंतु उसने ये बोला सिर्फ मुझे आपकी दया की जरूरत है। She just stood there as a helpless mother. वो एक ऐसे माता जिसको कोई उसको साथ देने के लिए नहीं था, वैसे वो वहाँ पे खड़ी। With a very urgent need, my daughter is demon possessed and suffering terribly. और उसको ये एक बहुत जरूरी बात उसने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा कि मेरी जो बेटी है उसको दुष्टात्मा ने ग्रस्त कर But we will be focusing from verse 23. और पर हम 23 पद से ध्यान करेंगे। Verse 23 we read like this: Jesus did not answer a word. वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने कुछ उत्तर ना दिया। Hearing such an urgent need, not even a word of response. ऐसा एक बहुत जरूरी था, परंतु प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रति उत्तर उस समय नहीं मिला। Hearing that someone is suffering terribly, Jesus was silent. और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को पता था एक व्यक्ति है जो बहुत गंभीर अवस्था में है, परंतु उस समय प्रभु यीशु मसीह शांत रहे। Can we picture such a Jesus when we present such a urgent need? Someone who is so silent towards our request, someone who is so silent towards our prayers. जब ऐसा हम एक यीशु मसीह को हम सोच सकते हैं क्या, जिसके सामने हमने बहुत जरूरी प्रार्थना रखी है, जो बहुत जरूरी बात रखी है, परंतु वो उस समय में शांत है। And we can see disciples coming to Jesus and asking Jesus to respond to her. और हम देख सकते हैं उसके बाद चेले भी आके प्रभु यीशु मसीह से बोलते, प्रभु यीशु मसीह आप इसका प्रत्युत्तर दीजिए। Not out of love, but they just want to send her away. और परंतु अब प्यार से नहीं, प्रेम से नहीं, परंतु इसलिए कि वो स्त्री को चेले लोग जल्दी से भेजना चाहते। As I was reading this passage, one thing that really made me think is that the disciples' attitude was to send her away. Then what was the attitude about the people or the crowd
which was present there. और जो वहाँ पे जो चेले लोग थे उनका ये स्वभाव था कि वो जल्दी से जल्दी उस स्त्री को वहां से भेजना चाहते हैं। तो मैंने सोचा जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनका क्या बर्ताव होगा उस स्त्री के प्रति। We can see three response of Jesus in these verses. हम यहाँ पे 3 प्रत्युत्तर को देख सकते हैं। जो In verse 23 he was silent. और 23 पद वो शांत था। In verse 24 he gave a very negative response. और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत नकारात्मक प्रत्युत्तर को And in दिया। verse 26 he uttered some harsh words. और उसने 26 पद पर प्रभु यीशु मसीह ने जो किसी को अच्छा नहीं लगता वो बात को किया। Now all of you just listen here. Why Jesus responded in such a way? अब सब आप यहाँ पे सुनो। आप हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रत्युत्तर क्यों दिया। Is religion a matter for Jesus? क्या हमारा जो रिलीजन है वो प्रभु यीशु मसीह को मायने रखता है? Culture a barrier for Jesus? क्या जो हम जिस कल्चर से आए हैं वो एक बाधा है प्रभु यीशु मसीह के लिए? Is gender an issue for Jesus? क्या हमारा जो लिंग है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मायने रखता है? Is people's opinion a issue for Jesus? जो लोग जो हमारे प्रति बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को मायने रखता है? Was Jesus really having a missional priority for Israel? क्या प्रभु यीशु मसीह को इस्राएलियों के प्रति एक मिशन था? As we read this passage, all these questions come throughout our mind. Why Jesus did this? जब हम इस पद को पढ़ते हैं ये सारे सवाल हमारे मन में आएंगे। What was the purpose of Jesus when he was speaking out these words? क्या प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को बता रहा था? The situation that this woman is going through is very much similar to our situation, where we are going through a period of silence, where we are going through a period of uncertainties. और जैसे ये स्त्री का जो अभी जीवन है उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में ऐसा बात हो सकता है, ऐसा समय आ सकता है जब हमारे जीवन में सब कुछ शांत चल रहा हो। A period where she was left alone. एक ऐसा समय जहाँ पे सबने उसको अकेला छोड़ दिया A हो। period where she was fully helpless. और एक ऐसा समय जहाँ पे कोई भी उसको मदद करने वाला A नहीं हो। period where she was fully hopeless. वो एक ऐसा एक समय जहाँ पे उसके जीवन में सब कुछ आशाहीन हो। And moments even where she thought that Jesus also is leaving me alone. और एक ऐसा समय जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको अकेला छोड़ दिया। I hope this resonates with some of our situation where we also think why God is not answering to my prayers. Even Jesus is also leaving me. Even Jesus is also silent towards my request. और ये हमारे जीवन में भी हो सकता है, क्यों प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? क्यों प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं देख रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को लेके शांत है या कुछ नहीं करना चाहता है? As we discussed in last day, we all are here because we all received a calling. और जैसे हमने पिछले समय बात किया कि हम सब यहाँ पे इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह से हमारे जीवन के लिए एक बुलाहट है। But there are situations, occasions in our life where we also get tired, where we also get very much tired that we question God. और हमारे जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब हम भी बहुत थक जाते हैं और हम भी प्रभु यीशु मसीह को सवाल करते हैं। To understand this particular passage, we need to understand some passages preceding to this. और अगर हमने इस पद्यांश को हमको समझना है तो हमें इसके जो ऊपर के जो पद्यांश है उसको हमें समझना पड़ेगा। This narration comes after Jesus feeding the 5,000. ये जो हमने बात को अभी सीखा है वो इस पद्यांश के बाद आता है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया था। This narration is succeeding after the narration of Jesus feeding the 5,000 people in the shore of Galilee. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने पद्यांश को पढ़ा है वो उसके बाद आता है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को गलील के नदी के किनारे वहाँ पे उनको खिलाया था। And this narration of feeding of 5,000 is well explained in John chapter 6. और ये जो 5,000 लोगों को किस रीति से चमत्कारी रूप से बताया था वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में बताया गया। Can we turn our attention to John chapter 6 verse 26? क्या हम अपने ध्यान को लेके जा सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 26 पद? Can one of you read that? John chapter 6 verse 26. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 26। आप में से कोई भी पढ़ सकता है। 26। उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। After this miracle of feeding of 5,000, a large crowd was following Jesus. ये वो समय था जहाँ पे
काफी सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह कर चुके थे और काफी सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे And थे। Jesus is telling a very important thing that these people are following me not out of love but because they are satisfied. और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ऐसा एक बात बोला, ये लोग मेरे पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं कि ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु मैं इनके जीवन में संतुष्टि लाता हूँ, इसलिए मेरे पीछे हैं। They followed Jesus because they were satisfied. वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए थे कि प्रभु यीशु मसीह जो भी वो मांग रहे थे, सारी मांगे प्रभु यीशु मसीह पूरी कर रहे थे। He is never happy about a big group of people following him because he was knowing the purpose of people following him. प्रभु यीशु मसीह कभी भी खुश नहीं थे कि एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे है, काफी सारे लोग उनके पीछे है, परंतु क्योंकि वो जानते कि इन सब का अर्थ क्या है, इन सब कई लोगों का उद्देश्य क्या था मेरे। They followed Jesus not because they loved him, not because they were eager to hear his teachings, just out of the satisfaction they followed Jesus. वो लोग जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे, इसलिए उनके पीछे नहीं थे कि उससे प्यार करते हैं या तो उससे कुछ सीखना चाहते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनकी सारी मांगे पूरी कर रहा था और वो संतुष्ट थे, इसलिए उसके पीछे थे। And in verse 36 we read that these people didn't believe Jesus. और जब हम उसका 6 का 36 पद हम पढ़ते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को तो भी वो विश्वास नहीं करते थे। Even after seeing all these miracles, even after hearing the teachings of Jesus, even after witnessing Jesus face to face, they cannot believe Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सब प्रकार के प्रचारों को सुना, चमत्कार देखे, सारी बातों को देखा, परंतु इस सब के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह के आमने सामने थे, पर तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। So you can note down this. These were people who followed out of satisfaction. और आप अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, तो ये ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सारी मांगे पूरी कर रहे थे। Secondly, this was a group of people who cannot believe Jesus, who didn't believe Jesus. दूसरे वो ये लोग थे कि वो ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाह रहे थे। Thirdly, this was a group of people who degraded the status of Jesus. और वो तीसरे वो इस प्रकार के लोग थे जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान था उन्होंने उसको तज दिया था या उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। When Jesus said that I came down from heaven, in verse 42, these people say that is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? जब हम उसका 6 का 42 पद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वो लोग ये सवाल करते हैं, क्या जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये तो वो नहीं है जो स्वर्ग से उतर के आया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं, तो वह ऐसा कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। In Matthew chapter 12, Pharisees says that it is only by Beelzebul, the prince of demons, this person is casting out demons. और जब फरीसी लोग मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसा बोलते हैं कि ये एक शैतानी रूप से चमत्कार कर रहा है, बेलजबूल से ये सारे चमत्कार कर रहा है। So Pharisees said that he is one of the demon. फरीसियों ने ऐसा बोला कि ये तो एक शैतानों में से एक शैतान है ये भी। And Jews said that he is just a son of the carpenter, whose father and mother are familiar to us. और यहूदियों ने ऐसा बोला ये तो एक जो कारपेंटर है उसका बेटा है जिसको हम सब जानते हैं। So the people around Jesus tried to degrade the status of Jesus. जो लोग उसके आसपास थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के स्थान को नीचे दिखाने का कोशिश किया। And in verse 60 we read that this is hard teaching. और जब हम उसका verse 60 और जब हम उसका 60 पद पढ़ते हैं, 6 का 60 पद पढ़ते हैं तो ये वहां पे ये लिखा है ये कठोर बात है। So these were a group of people for whom the teachings of Jesus were hard. और तो वो एक ऐसा समूह भी था, ऐसे लोग भी थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें वो सिखा रहे थे वो बहुत कठोर लगे। And verse 66 says that from this time many of them turned back and no longer followed him. और जब हम उसका 62 पद पढ़ते हैं 6 का ही, वहां पे हम देख सकते हैं वहां से काफी सारे लोग जो उसके पीछे थे, काफी सारे लोग पीछे मुड़ गए। So I said 5 things about this group of people. तो मैंने 5 बातें बताई जो ये लोग थे। First thing, this group of people followed Jesus out of satisfaction. और पहला बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग इसलिए थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनकी मांगे पूरी कर रहे थे। Second thing, these people didn't believe Jesus. और दूसरा कि ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। Thirdly, they degraded the status of Jesus. और वो तीसरा बात, उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान था वो उन्होंने उसको तज दिया, या तो वो नीच रीति से प्रभु यीशु मसीह को
देखे थे। Fourthly, these were a group of people for whom the teachings of Jesus were hard. और चौथी बात, वो एक ऐसे लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी वो बहुत कठोर लग रही थी। Fifthly, these people turned away from Jesus. और पांचवी बात, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से और दोबारा पीछे मुड़ गए। And to such a community, Jesus is presenting, or Jesus is communicating something very important through the life of this Canaanite woman. और ऐसा एक समुदाय है, ऐसे एक लोग है, उनको प्रभु यीशु मसीह जो कनानी स्त्री है उसके जीवन से एक बहुत जरूरी बात सिखा रहे हैं। Jesus is just coming out of a Jewish region where he faced such a group of people with such qualities, and to this group of people he is presenting this Canaanite woman with a very different qualities. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी जगह से निकल के वहाँ पे उन्होंने एक रोमी जन को देखा, और उन सब के बाद प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे जगह में आ रहे हैं जहाँ पे ऐसी एक स्त्री है जिसके कोई गुण नहीं है। Jesus was knowingly delaying this answer, knowingly doing this delay, just want to display the faith of this woman. और प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के ऐसा कर रहे थे कि वो स्त्री का विश्वास को दिखा पाए। Jesus just want to make this woman a model for this community. और प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये जो स्त्री है इस पूरे समुदाय के लिए एक मॉडल बन जाए। This group of people, these Jews, never accepted a woman. और ये जो उस समय के यहूदी लोग थे वो स्त्रियों को कभी भी अपनाते नहीं थे। And they never accepted a Gentile. और कभी भी एक अन्य जाति को नहीं अपनाते थे। But Jesus presented this Gentile woman as a model for this community. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस अन्य जाति स्त्री को पूरे समुदाय के लिए एक मॉडल या एक बड़े स्थान के लिए चढ़ाया। Jesus made her a model of true discipleship. और प्रभु यीशु मसीह ने उस अन्य जाति स्त्री को एक सच्चा चेला जो होता है उसके लिए उसको बताया। Jesus just want to present through her life what it is to be a true disciple. प्रभु यीशु मसीह उस अन्य जाति स्त्री के जीवन से ये बताना चाह रहे थे कि एक सच्चा चेला होना क्या होता है। Let me say one thing, silence in our life is not rejection, it is a test. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो शांत समय है, जिस समय कोई उत्तर नहीं आता है परमेश्वर से, वो एक ऐसा समय है जहाँ पे आपकी परीक्षा हो रही है। When we face silence in our life, when we think that why God is not responding to us, be assured this evening He is preparing something greater for us. जब आपके जीवन में आप ऐसा लगता है कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कुछ उत्तर को नहीं दे रहे हैं, तो उस समय आप ये सोचे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ बात को तैयार कर रहे हैं कुछ बड़े काम के लिए। When our plans fails, when our times go in vain, when our hope is not met, when all our plans are completely altered, believe this evening God is preparing something greater for us. जब आपके जो भी आपने प्लान बनाए हैं, जो भी कुछ आप चाहते थे, आप सब कुछ वो बना के रखे, सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ खो जाता है, उन सब के बावजूद भी इस शाम के समय आप ये विश्वास करें परमेश्वर आपसे कुछ बड़ा काम को कराना चाहता है। Someone rightly said like this, God's silence is not His absence. और एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का उत्तर ना देना ये नहीं बताता है कि प्रभु यीशु मसीह उसका स्थान वहाँ पे नहीं है। Let me repeat it, God's silence is not His absence. या आप ऐसा लिख सकते हैं, परमेश्वर का शांत रहना परमेश्वर का जो प्रेजेंस को नहीं बताता है। His delay is not His denial. अगर वो देर करता है इसका ये मतलब नहीं है कि उसने आपको छोड़ दिया है। Let us be assured this evening about this very important spiritual truth that whenever He is silent in our own personal issues, let us be a group of people who believe that He is designing something greater for us. तो ये एक आत्मिक सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर शांत है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से एक बड़े काम की रचना को कर रहा है। Jesus just want to present the response of this women to this Jewish community. तो प्रभु यीशु मसीह इस कनानी स्त्री का जो जीवन है उसको ये यहूदियों के सामने दर्शाना चाह रहे थे। In verse 23, Jesus was silent. What was this woman's response? जब प्रभु यीशु मसीह 23 पद में शांत थे तब उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया? Verse 24 we read like this, she knelt before Him, Lord help me. जब प्रभु यीशु मसीह 23 पद में शांत थे तो 24 पद में उस स्त्री ने क्या किया? वो अपने घुटने में आई और उसने ऐसा बोला। And the word used for this kneeling is the same word which is used for worshipping.
और जो शब्द वहां पे घुटना टेकने के लिए इस्तेमाल किया गया है, वही शब्द आराधना के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। When Jesus was silent, she worshipped Jesus. जब प्रभु यीशु मसीह शांत थे, जब कुछ प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था, उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना When की। Jesus was not at all responding to her needs, she came and worshipped Jesus. जब प्रभु यीशु मसीह उसके जो भी उसकी प्रार्थनाएं थे उसको नहीं सुन रहे थे, उसने उस समय परमेश्वर की आराधना की। Can we ask a question to ourselves? What is our response in the period of silences that we go through? क्या हम अपने आप से ये सवाल को पूछ सकते हैं, जब हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं उस समय? When Jesus is silent, what we do? How we respond? जब प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रत्युत्तर नहीं मिलता हमारी प्रार्थनाओं के लिए, तो आप क्या करते हो उस समय? Many a times delays make us doubtful. काफी बार जो देर है हमारी प्रार्थना के उत्तर मिलने में हमको संकोच में डाल देती है। क्या कोई है वहां पे? Many a times period of silence leads us to murmur against Jesus, leads us to question Jesus in our life. काफी बार जब हमारे प्रार्थना के उत्तर मिलने में देर हो जाती है, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं या तो हम उससे सवाल करने लग जाते हैं। But she was very confident about one thing: whatever is the response from Jesus, I will not leave Jesus. उस स्त्री के अंदर ऐसा विश्वास था, कुछ भी प्रत्युत्तर आने दो, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। Which was different from the people of Israelites who always murmured against God, who always questioned God, who always took stones to stone Moses in the midst of the silences and delays that these people faced. और ये जो सारा प्रत्युत्तर जो स्त्री ने दिया, वो इस्राएली लोग ने जो प्रत्युत्तर दिया, उससे लगता है जब वो मरुभूमि में थे, इस्राएली लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रति कुड़कुड़ा रहे थे, पत्थर मार रहे थे मूसा को और सवाल को कर रहे थे। Let me say one thing: we all face a period of silences in our life. मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, हम सब अपने जीवन में एक ऐसे समय से होकर गुजरते हैं जब हमें कुछ प्रत्युत्तर या हम शांत होता है। Such period of silences is common in all our life. और ये जो बात है हमारे जीवन में होती रहती है। And what makes us different is how we are going to respond to it. और ये हम है, हमको ये कैसे अलग बनाती है, इसका ये उत्तर है कि हम कैसे इसका प्रत्युत्तर देते हैं। Even when we are present in a theological college, in a theological setup, surrounded with God's word, God-fearing teachers and all, but still we are concerned about many of our personal concerns, tensions, our family matters, our personal issues. We are going through a lot. और जब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इस धर्म विज्ञानी कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब काफी सारे आपके टीचर लोग हैं जो आपको शिक्षा देते हैं, परंतु हम सब इन सब के बावजूद भी अपने जो आर्थिक जीवन है, अपने जो व्यक्तिगत जीवन में सवालों को और परेशानियों से होकर हम गुजरते हैं। What is our response? जब हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है तो हम हमारा क्या प्रत्युत्तर, हमारा क्या उत्तर है? Here Jesus presents a woman who followed Jesus even when she was dissatisfied. और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे स्त्री को दर्शा रहे हैं जो वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह से कुछ उत्तर नहीं मिलता तब भी वो संतुष्ट है। As I said, this passage is just after the passage of Jesus feeding the 5,000, where a group of people followed Jesus because of satisfaction. मैंने आपको बताया कि इस जो पद्यांश से पहले एक अध्याय जो पद आता है, वहाँ पे देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों के लिए चमत्कार किया और जो लोग उसके पीछे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से संतुष्ट हैं। He is presenting a woman to this community and communicating a spiritual truth to them. You are following me out of satisfaction, but this woman is following me even when she was dissatisfied. और प्रभु यीशु मसीह उस जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो समुदाय है, उनको ये बता रहे हैं, आप सब मेरे पीछे इसलिए हैं कि मैं आपकी मांगे पूरी कर रहा हूँ। परंतु यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है, जब उसकी मांगे पूरी नहीं हो पाए, जब वो संतुष्ट नहीं थी, तब भी वो मेरे पीछे है। And in verse 25 we can see the second response of this woman. और हम 25 पद में 6 के 25 पद में हम दूसरा उत्तर दे सकते हैं उस स्त्री का। She said, Lord, help me. उसने ये बोला, है प्रभु मेरी सहायता कर। She was fully confident that it is only Jesus who can do something in her life. उसको ये पूरा आत्मविश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरी प्रार्थना को उत्तर दे सकते हैं। She believed Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया। We said about a group of people who was not able to believe in Jesus even after seeing such a miracle. हमने एक ऐसा समुदाय की हमने बात किया कि हम ऐसे एक समुदाय है जो प्रभु यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार किए फिर भी वो विश्वास नहीं कर पाए। And Jesus is presenting to them a woman who is able to believe Jesus
even in the midst of neglection and in the midst of all such challenges she was going through. और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे एक ऐसी कनानी स्त्री को दर्शा रहे हैं जहाँ पे उसको कुछ प्रत्युत्तर नहीं मिला, वो परेशानी में थी और सब कुछ चल रहा था, उस सब के बावजूद भी उसने अपना विश्वास को मजबूत रखा और उसके पीछे And the third response of this woman is recorded in verse 26 and 27. और जो तीसरा उसका जो स्त्री का उत्तर है वो 27 और 28 पद में बताया गया है, Where the important statement that always makes us confused is in verse 26. और जो 26 पद में एक ऐसा एक पद है जो हम सबको असमंजसता में या बातों में डाल देता Where है, Jesus said it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। But the response of this woman was, yes, it is Lord. Even the dogs eats the crumbs that fall from their master's table. तब भी वो स्त्री ये उत्तर देती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते This हैं। really caught my attention. जब मैंने इसको पढ़ा इसने मेरे ध्यान को आकर्षित किया। As I said, this passage is just after a passage where Jews questioned the status of Jesus. और मैंने आपको ये बताया ये एक ऐसे पद्यांश के बाद लिखा गया है जहाँ पे यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर का क्या स्थान है उसको उसके ऊपर सवाल उठाए। Where Pharisees and Jews questioned the worthiness and status of Jesus. जहाँ पे जो फरीसी थे जो यहूदी थे उन्होंने ये बोला कि ये कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। And here Jesus is presenting them to a woman who accepts the status given by Jesus. और वहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जो उस स्थान को वो मान लेती है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया है। There was no arguments. वहाँ पे उसने कुछ भी कुड़कुड़ाया नहीं, There was no justifications. वहाँ पे उसने अपने आप को साफ रीति से बताने का She was happy to remain in the status given by Jesus. और वो बहुत खुश थी जो स्थान प्रभु यीशु मसीह She was not in a position to prove herself something. She just want to remain in that status, and she is asking for something for Jesus to do in that status. और वो उस समय भी वो कुछ बताना नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, परंतु उस स्थान में रहकर भी वो प्रभु यीशु मसीह जो करना चाहते थे उसके लिए तैयार। And we said about a group of people who turned away from Jesus, telling that his words are so much harsh for us. और हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक ऐसे समुदाय थे जो ये बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत कठोर है। And Jesus is presenting them a woman who, even hearing these harsh words, still followed Jesus. और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना कठोर बात प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनने के बाद भी वो स्त्री अभी भी प्रभु यीशु मसीह। That's why I said to understand this episode, we need to understand that episode. तो मैंने इसलिए ये बताया कि अगर आपको इस बात को समझना है, आपको जो पहले जो बात है उसको समझना पड़ेगा। The preceding episode presents a group of people who followed out of satisfaction. जो एक उससे पहले जो एक ऐसा समुदाय था, ऐसा एक भीड़ था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे था क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह उनकी मांगे पूरी करता था। And here there is a woman who followed out of dissatisfaction. और यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, जो वो असंतुष्ट है, जो संतुष्ट नहीं है प्रभु यीशु। There was a group of people who cannot believe Jesus, and here is a woman who is able to believe Jesus in the midst of the silence period that she went through. और वहाँ पे एक भीड़ ऐसा एक समुदाय है जो प्रभु यीशु ने जो भी बातें की वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, परंतु यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रत्युत्तर नहीं मिलने के बाद भी वो उस पर विश्वास करती है। There is a group of people who question the status and worthiness of Jesus, and here is a woman who accept the status given by Jesus. और वहाँ पे एक ऐसा समुदाय है जिसने प्रभु यीशु मसीह के स्थान को तज दिया, उसको बहुत नीच रूपी से प्रभु यीशु मसीह को देखा, परंतु यहाँ पे ऐसी स्त्री है जो स्थान प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया वो अपना लेती है। There is a group of people who went away from Jesus hearing the harsh words, and here is a woman, even after hearing the harsh words, still following Jesus. और यहाँ पे एक ऐसा समुदाय है प्रभु यीशु मसीह से कुछ शिक्षाएं को सुनने के बाद उनको ऐसा लगा बहुत कठोर है, वो प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए, परंतु यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जब प्रभु यीशु मसीह ने कठोर बात बोला उस समय भी वो वहाँ पे। I understood one thing. This episode was a clearly designed episode. और मैंने ये इस बात को समझा कि जो ये घटना है साफ रीति से यहाँ पे कुछ बताता है। Through this conversation with this Canaanite woman, Jesus was communicating to this group of people who was following Jesus. और इस कनानी स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ पे उसके साथ उसके पीछे जो भीड़ है उनको कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं। Actually, what she need is just a healing. परंतु वहाँ पे आप देख सकते हैं कनानी स्त्री को क्या जरूरी है, सिर्फ
एक हीलिंग जरूरी But है। Jesus was not in a position to give her a healing and send her away. पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे स्थान पे नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उसकी बेटी को चंगा कर दे और उसको भेज दे, Jesus was making her a model to the entire community. परंतु प्रभु यीशु मसीह उन सब के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उस कनानी स्त्री को वहाँ पे एक मॉडल के रूप में बता रहे थे। Amen. आमीन। Many a times in our lives we just expect something from Jesus. काफी बार जब हम प्रार्थना करते हैं हम सब प्रभु यीशु मसीह से कुछ बातों को पाना चाहते हैं, But why Jesus delays is He is doing something greater than our expectations. परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे प्रार्थना का देर करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारी बातें हैं उससे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ करना चाहते हैं। Jesus don't want to just meet our expectations and send us away. He want to do something greater than our expectations. प्रभु यीशु मसीह हमारे जो बातें हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसी समय उत्तर नहीं देना चाहता, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से कुछ बड़े कार्यों को कराना चाहता है। He want to make this rejected woman a model for this community. वो एक ऐसे स्त्री को जो उसने सबने उसको छोड़ दिया था, सबने उसको तज दिया था, उस स्त्री को वो पूरे समुदाय के बीच में एक मॉडल के रूप में He want to make this outsider a model for this community. एक ऐसे स्त्री को जो एक बाहर है, जो बाहर रहती है, जिसको कोई नहीं चाहता, उसको एक मॉडल के रूप में प्रभु यीशु He want to make this. He want to make this helpless, hopeless woman a model for this Jewish community who thought that they are something. They thought that they have everything, and Jesus is communicating to them some important spiritual truth through the life of this woman. प्रभु यीशु मसीह जो वो स्त्री है जिसको कोई मदद करना नहीं चाहता, जो आशाहीन है, उसको एक मॉडल के रूप में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा समुदाय है जो अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने आप को बहुत बड़े समझता है। When we go through the period of silence, जब हम एक ऐसे समय से जाते हैं जब कोई कुछ उत्तर नहीं मिलता, let me tell you something. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, God is designing something very different in our life. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ अलग, कुछ अच्छी बात की रचना कर रहा When है। we are praying just for a healing, God is designing something greater than healing. तो जब हम सिर्फ एक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु में हमारे जीवन में उससे भी बढ़कर कुछ बातों को बना रहा है। He is a God who works beyond our expectations. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी क्षमताओं से बढ़कर कार्य करने के लिए है। Even in the midst of silences, He is working behind the scene. जब वो शांत, जब हम जो उत्तर हमको नहीं मिलता उन सबके पीछे प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहा है। When we cannot see anything, when we cannot experience anything, when we question, where are you, Lord? He is working behind the scene. जब हम बोलते हैं कि जब हम कुछ भी महसूस नहीं करते, कुछ भी अनुभव नहीं करते, हमारे सवालों का उत्तर नहीं मिलता, उस समय प्रभु यीशु मसीह उन सबके पीछे कार्य को कर रहा है। Let us be confident in the midst of this period of silence that we go through. तो आइए हम अपने एक विश्वास को अटूट बना ले, मजबूत बना ले इन सब के बाद। Let us trust this God in the midst of the period of silences that we go through. आइए हम जो हमारे जीवन में जब उत्तर नहीं मिलता उस समय में भी हम उस परमेश्वर को पूर्ण रूप से हम विश्वास करें। When we are not able to see anything good, when we are not able to receive anything that is making us happy, let us trust in Him, believing that He is working behind the scene. जब हमको कोई भी बातें हमको खुश नहीं करती है, कोई भी बातें हमको संतुष्ट नहीं करती है, उन सब के बावजूद भी आइए हम ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कार्य को कर रहा है। God is designing something greater. परमेश्वर कुछ बड़ी बात की रचना कर रहा है। Amen. आमेन। God is designing something greater in the midst of these silences, these uncertainties that we are going through. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो भी ऐसी मुश्किल बातें आती हैं उन सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक बड़े काम को कर रहा है। Abraham went through a period of silence. अब्राहम एक ऐसे समय, एक शांत समय से होकर गुजरा। A silence of 25 years. एक ऐसे 25 साल जहाँ पे उसको कुछ उत्तर नहीं मिला। He received the God's promise when he was 75. उसको प्रभु यीशु मसीह का जो प्रॉमिस था वो तब मिला जब वो 75 वर्ष का था। Then God was silent for next 25 years. उसके बाद 25 साल और प्रभु यीशु मसीह से कुछ उत्तर नहीं मिला। As I was reading those passages last day, I was thinking, why God? Why you cannot fulfill that promise when Abraham was 80? क्या मैंने मैंने परमेश्वर से ये सवाल पूछा, जब अब्राहम 80 साल का था, जो वादा परमेश्वर ने किया तो उस वादा को पूरा क्यों नहीं किया? God, why you delayed it for such a long time? क्यों परमेश्वर ने इतना देर लगाया उस वादा को, जो वाचा बांधा था उसको पूरा करने के लिए? And I received an answer from the word of God. और मुझे जो परमेश्वर के वचन से एक उसका उत्तर मिला। Abraham was a man of unique perspective. जो अब्राहम था एक व्यक्ति था जिसका एक बहुत अलग दृष्टिकोण था। Abraham was a man of unique perspective. अब्राहम एक कैसा व्यक्ति था?
एक उसका एक अलग दृष्टिकोण था। Once king of Sodom said to Abraham, "You can take anything from me." एक सुदोम के राजा ने अब्राहम से एक बार ऐसे बोला, तू यहाँ से इस राज्य से कुछ भी लेके जा सकता है। But Abraham responded to that king, "I will not take anything from you, because you will say later, you made Abraham wealthy." और तो अब्राहम ने ऐसा बोला, अगर मैं इस स्थान से इस राज्य से कुछ भी लेके जाऊंगा, तू ऐसा बोलेगा आने वाले दिनों में कि तूने मुझे अमीर बनाया है। I will not take anything from you, because you will say after some time, "You made me wealthy." मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तू ऐसा बोलेगा कि तूने मुझे अमीर बनाया है। Abraham was such a man of such a perspective that I will not take anything from anyone, so that no one will claim my wealthiness. No one will say after a few years that I made Abraham wealthy. तो अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी का कर्जदार नहीं था कि आने वाले दिनों में कोई उसको ऐसा ना बोले कि इसने मुझे अमीर बनाया है। And God applied the same policy in Abraham's life. और उसी बात को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कार्य को God applied this very same perspective in the life of Abraham. परमेश्वर ने वही दृष्टिकोण अब्राहम के जीवन में इस्तेमाल किया। If Abraham received the fulfillment of this promise in his age of 75, when he was strong enough, when he was a warrior, he will say that I received this fulfillment of promise. तो जब अब्राहम 80 वर्ष का था, अगर उस समय उसको जो वादा उस समय परमेश्वर पूरा करते थे, अब्राहम ऐसा सोचता, मैं एक बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, इसलिए परमेश्वर ने वो वादा मेरे जीवन से पूरा किया। We know that Abraham was a warrior. He was having an army with him. He was having an army in his household. आप सब जानते हैं कि अब्राहम एक बहुत धनवान व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा सेना था उसके पीछे, और उन सब का एक बड़ा स्थान था उसको। Abraham was so wealthy. He was strong enough. He was independent from everyone. He was strong enough to face anything. और अब्राहम इतना अमीर था, उसके पास सब कुछ था, वो एक ऐसा मनुष्य था जिसको इधर से ना उधर से किसी की भी मदद की जरूरत नहीं थी। And in all those years, he never received the fulfillment of God's promise. और उन सारे सालों में उसको कुछ भी उत्तर और या उसका जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। And he waited for a long time. और उसने काफी सालों का इंतजार किया। He lost all his hope. उसने सारी आशा को खो दिया। He became so tired. वो काफी थक गया। His health was reduced. और जो उसका स्वास्थ्य था वो भी घट चुका था। Finally he said, "Now I don't need this fulfillment of this prophecy. I am happy with Ishmael and Eliezer. I am no more in need of a child." तो ये सब बातें हो रही थी, उसने उस समय ये बोला कि अब मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे कोई आशा नहीं है, जो इस्माइल है, जो मेरा पुत्र है, जो एलियाजर है, मैं उससे खुश हूँ। Abraham said, "I am tired, my wife is tired, now we are not that healthy, now we cannot do anything, now we are not in need of such a fulfillment." तो जब अब्राहम थक चुका था, उसका उम्र काफी हो चुका था, और उसका जो पत्नी था उसका भी उम्र काफी हो चुका था, उसने बोला अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। And God said, "This is my time." और जब उस समय परमेश्वर ने बोला ये मेरा समय है। And God said, "This is my time of the fulfillment of some prophecies." और ये मेरा समय है जब मैं कुछ भविष्यवाणी को तेरे जीवन में पूरा करने When जा रहा we हूँ। become tired, when we become helpless, when we are not able to do anything, God is going to do something greater for us. जब हम थक जाते हैं, जब हम आशाहीन हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में कोई मदद करने वाला नहीं होता, उस समय परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को Some करता है। period of silences is just to make us aware about our helplessness. काफी जो समय हमारे जीवन में आते, जहाँ पे कुछ उत्तर नहीं बताते, वो ऐसा समय है वहाँ पे हमको ये पता चले कि हम बहुत आशाहीन है, हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल Some सकती। period of silences is just to make us know that we are nothing. कुछ ऐसे समय हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हमको ये मालूम चले कि हम कुछ भी नहीं हैं। And when we are into that realization, God says, "It is my time to do something greater for you." जब आपको ये मालूम चलता है, जब आप उस समय में होते हो, जब आप कुछ भी नहीं है, तब उस समय परमेश्वर अपने कार्य God says, Abraham, I don't need your help to fulfill my prophecies. Abraham, I don't need your help. I don't need your wealth. I can do something even in the midst of all this chaos. तो परमेश्वर अब्राहम से ऐसा बोलते हैं, मुझे तेरी संपत्ति की जरूरत नहीं, मुझे तेरे स्वास्थ्य की जरूरत नहीं, मुझे तेरे किसी भी बात की जरूरत नहीं है। जब तू आशाहीन हो जाएगा, तब तेरे पास कुछ नहीं होगा, उस समय मैं तेरे जीवन में कार्य को करूंगा। But this period of silence in the life of Abraham proved Abraham as a friend of God. जब इसके जीवन में ये देर का समय था, जब उत्तर नहीं मिला था, उस समय उस अब्राहम को ये स्थान मिला कि अब्राहम परमेश्वर का एक दोस्त है। All these years he was faithful in the sight of God. ये सारे साल
अब्राहम विश्वास योग्य बना। All these years he led a righteous life. ये सारे साल वो एक धार्मिक जीवन, धर्मी जीवन Let me बिताया। ask you a question. मैं आपसे एक सवाल को When we go through such period of silences, जब हम ऐसे एक समय से होकर गुजरते हैं, can we prove out to be the friends of God? क्या हम परमेश्वर के दोस्त बन सकते हैं? Can we prove out to be the faithful ones of God? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के एक विश्वासी योग्य दास बन सकते हैं? Can we prove out to be fruitful for the Lord? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक फलवंत जीवन जी सकते हैं? Or we are murmuring against God? क्या हम उस समय हम कुड़कुड़ा रहे हैं? Or we are questioning God these days? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से सवालों को उठा रहे हैं? Seeing our situations, are we asking God, where are you, Lord, in my life? जो जब हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, इतनी मुश्किल है, इतना कुछ चल रहा है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप कहाँ पे हो? Let us be faithful even when things are delayed. आइए हम विश्वास योग्य रहे जब हमको कुछ उत्तर नहीं मिलता, जब हमारे जीवन में देरी का समय चल Let रहा us be faithful even when things goes against our expectations. है। आइए हम विश्वास योग्य बने रहे जब हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है जो हम जो नहीं सोचते हैं। Delays are time where God is testing us to display our faith. जब देर वो समय है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की परीक्षा को ले रहा है। Canaanite woman displayed her faith in this period of silence. जो वो कनानी स्त्री थी, उसने अपने विश्वास को इस देर के समय में उसने अपने विश्वास को दर्शाया। And this is such a time where God is asking us, what is your faith? और ये ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, आपका विश्वास And क्या है? this is such a time where God is checking, God is testing us how much we trust Him. और एक ऐसा समय है प्रभु यीशु मसीह हमसे ये पूछ रहे कि हम कितना उस पर विश्वास करते हैं। She followed Jesus out of dissatisfaction. उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली जब वो संतुष्ट नहीं थी। She believed in Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। She accepted the status given by Jesus. जो स्थान प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया था, उसने उसको मान लिया, अपनाया। She followed Jesus even when she faced harsh words from Jesus. और उसने प्रभु यीशु मसीह का पीछा किया जब उसने कठोर बातों को प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना। How we are going to respond to this period? क्या इस समय में आप कैसे, क्या आपका उत्तर क्या होगा? As I said, we live in a time of uncertainties. मैंने आपको बताया ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी भी समय। Things happening around us are fully confusing us. जो बातें हमारे आसपास चल रही है हमको असमंजसता में, हमको एक अलग अवस्था में डाल सकते हैं। Many a times it is questioning our faith. काफी सारे समय ये हमारे विश्वास का परीक्षा लेती है या प्रश्नों को उठाती है। Many a times it is questioning our convictions that we are having. और काफी समय जो विश्वास, जो निर्णय हमने लिया है उसके ऊपर सवाल उठाती है। Many a times it makes us tired. काफी सारे समय वो हमको थका देती We है। stepped inside this campus with a passion. जब हम इस कैंपस में आए, इस कॉलेज के अंदर आए, हमारे अंदर एक जुनून था। We stepped inside this campus with a passion to serve Christ. In the midst of anything and everything, we were willing to serve Christ. और हमारे अंदर ये जुनून था, हमारे जीवन में कुछ भी बात हो जाए, हम सब बातों में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे। But there are some situations in our life where this passion goes away from us. काफी सारे परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी कि ये जुनून जो हम लेके आए थे वो चले जाए। When we feel regret. जब हमारे जीवन में एक ऐसा समय है जहाँ पे कोई हमारी बात को नहीं सुन रहा है। When we think that we are in a wrong place. जब हम सोचते हैं कि ये एक गलत स्थान में हम आ चुके हैं। When we think that are we doing right thing? और हम सोचते हैं क्या मैं एक सही बात को कर रहा हूँ? Am I really called by Jesus? क्या मेरे जीवन से प्रभु यीशु परमेश्वर का कोई बुलाहट है? Am I in a right place to serve God? क्या मैं एक सही स्थान में हूँ जहाँ पे मैं परमेश्वर का बात को? Why I am facing all these challenges in my life? जब मैं सारी ये मुश्किलों को अपने जीवन में यहाँ पे सहता हूँ, Why God is not responding to me? क्यों प्रभु यीशु मसीह उत्तर नहीं दे रहा है? Why I am going through this period of silence? क्यों मैं ऐसे एक देर के अवस्था से होकर गुजर रहा हूँ? Let me assure you, this evening He is designing something greater for you. मैं आज इस शाम के समय आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी बात को आपके जीवन में रचना कर Can रहा we है। boldly proclaim this evening He is designing something greater for us? क्या आज शाम के समय हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबके जीवन में एक बड़े काम को कर रहा है? When He seems silent, still He is Emmanuel. जब वो शांत है उस समय भी वो इम्मानुएल When है। He is silent, He is not absent. जब वो शांत है उसका ये मतलब नहीं है कि उसका स्थान हमारे बीच में नहीं है। Amen. आमीन। Even in the midst of silence, He is working for us. जब वो हमारे जीवन
जिनमें शांत है, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य को कर He रहा is है। designing something greater than our expectations. वो हमारे जीवन में एक ऐसे बात को कर रहा है जो हमारे सोचों से भी बढ़कर है। He is going to answer this question even in a ways that we have never thought for. वो हमारे सवालों का जवाब उस समय देगा जब हमने उस बातों का कल्पनाएं भी नहीं की होगी। Let us trust in Him. आइए हम उस पर विश्वास करें। When people questions our faith, जब लोग हमारे विश्वास के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, when people questions us, where is your God? Let us trust in Him. जब हम लोग बोलते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ पे, उस समय भी आइए हम उस पर विश्वास Let करें। us boldly proclaim, I have decided to follow this Jesus, no turning back. आइए हम इसको हम बोले कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। Whatever comes in my way, I will never go away from this कुछ Jesus. भी बात हमारे साथ, तो हम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। Even when He is silent, जब वो शांत हो, even when I am dissatisfied, जब मैं असंतुष्ट हूँ, even my prayers are not answered, जब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, even I am in a challenging situation, जब मैं एक मुश्किल समय से होकर still I will follow Jesus. उस समय भी मैं परमेश्वर Nothing can take me away from the love of Jesus. कोई भी चीज मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर Nothing सकती। can take me out of this conviction. कुछ भी बात जो निर्णय मैंने लिया है उससे मुझे अलग नहीं कर Nothing सकती। can take me away from this passion for Jesus. कुछ भी बात जो जुनून मेरे अंदर है प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसको खत्म नहीं कर सकती। How many of us can reassure our conviction this evening? I will never go back from this Jesus. इस शाम के समय कितने लोग अपने जीवन में ये पूर्ण निर्णय ले सकते हैं कि आज मैं शाम को फिर से ये निर्णय लेता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा। I hope some of you know the background behind this song. I have decided to follow Jesus. आप सबको इस मैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा उसका संदर्भ, उसका पृष्ठभूमि पता होगा। I hope some of you know that story. अब में से काफी सारे लोग को उस कहानी को पता होगा। When this man was questioned for his faith, जिसने ये गाना लिखा है उसको सवाल उठाया गया उसके विश्वास के when his children was killed in front of him, जब उसके बच्चों को उसके सामने मारा गया, when his wife was killed in front of him, जब उसकी पत्नी को भी उसके सामने मार दिया he गया, said, still I will follow. उस समय भी मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। Even though I will lose everything, मैं सब कुछ खो दूंगा, even though I will lose everything in this journey, मैं सब कुछ खो दूंगा तो भी still I will follow Jesus. मैं उस समय भी प्रभु यीशु I will not move anywhere from my decision. मैं उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के जो निर्णय मैंने लिया उससे पीछे नहीं हटूंगा। As I said last time, discipleship is a challenging journey. मैंने आपको बताया चेलापन एक बहुत मुश्किल निर्णय है। This is not easy. ये आसान नहीं है। Why we are happy? Because this is not easy. ये हम खुश क्यों हैं? क्योंकि ये आसान नहीं है। I am happy not because this journey is easy. I am happy because He is with me. मैं खुश हूँ इसलिए नहीं क्योंकि ये जो जीवन है आसान है, परंतु ये मैं इसलिए खुश हूँ कि ये जीवन में वो हमारे साथ है। Journey is challenging, but we are not alone. अगर ये जो जीवन है संघर्षपूर्ण है, परंतु हम अकेले नहीं हैं। Journey is so difficult, but He will never leave us alone. अगर ये जीवन बहुत मुश्किल है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। He is a very unique teacher. He is a very unique master. वो एक बहुत अलग शिक्षक है। He is not like other people, other teachers who sends us with a task. वो एक शिक्षक नहीं है जो हमके कुछ कार्य को करने के लिए बोलता है और भेज देता है। He is such a teacher who comes with us to fulfill this task. वो एक शिक्षक है जो हमको जो कार्य उसने दिया है उस कार्य में वो भी हमारे साथ चला आता है। What is our confidence this evening? आज शाम को हमारा विश्वास क्या है? Discipleship is not easy. तो चेलापन आसान नहीं है। Our confidence is He is walking with us. He is coming with us. और हमारा विश्वास ये है कि वो हमारे साथ चल रहा है और वो हमारे साथ Can we boldly proclaim this evening, I am not alone, He is with us. क्या हम इस शाम के समय ये घोषणा कर सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ है? Amen. Amen. In the midst of all the chaos that we go through, He is with us. जो भी परिस्थिति से होकर हम गुजरे उस सब के बावजूद भी वो उसके बीच में हमारे साथ है। When people ask us why you are still following Jesus, let us boldly proclaim He is with us. जब लोग हमारे ऊपर प्रश्न उठाए कि क्यों अब इस सब के बावजूद भी क्यों तू उसके पीछे चल रहा है? He is not a God who just sends us. He is a God who walks with us. वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें सिर्फ कुछ करने के लिए भेज देता है, परंतु वो हमारे साथ चलता है। Can we all submit our lives to the hands of this Master? आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने
अपना जीवन उसको सौंपे। Can we all resurrender our lives once again to this Master? आइए हम अपना जीवन एक बार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपें। Can we all close our eyes for a moment? आइए अपने आंखों को बंद करें। Why we are following Jesus? क्यों हम परमेश्वर के पीछे चल What रहे is the purpose behind following Jesus? क्या उद्देश्य है हमारा उसके पीछे चलने का? Are we following Jesus out of satisfaction? क्या हम उसके पीछे इसलिए कि वो हमें संतुष्टि देता Or we है? are still in a position where we cannot believe in Jesus? क्या हम एक ऐसे स्थान में जहाँ पे हम उसका विश्वास नहीं करना चाहते? Or we are in still a position where we are not able to believe what Jesus is speaking to us? क्या हम एक ऐसे स्थान में हैं जहाँ पे जो भी वो बात वो को करता है हम उस पर विश्वास करना नहीं चाहते? Let us be like this Canaanite woman आइए हम उस कनानी स्त्री के तरह हो जाए who followed Jesus out of dissatisfaction, जो जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब वो असंतुष्ट थी, जब उसको नहीं who मिला तो believed in उसके Jesus साथ in the midst of all the challenges, जो उसने सारे परिस्थितियों के बावजूद भी उसने उसके who पीछे चला, accepted the worthiness given by Jesus, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने जो स्थान को दिया था उसको अपना लिया who followed Jesus even when the response was harsh. और उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली जब वो उसको उत्तर एक कठोर उत्तर को मिला। Let us be faithful. आइए हम विश्वास योग्य Let us बने। trust in Him. आइए हम उस पर पूर्ण रूप Let से विश्वास us करें। believe something greater to be coming in these days. आइए हम ये विश्वास करें आने वाले दिनों में कुछ बढ़कर हमारे जीवन में होने जा रहा He is है। designing something greater. आइए हम ये विश्वास करें कि कुछ बड़ी बात की रचना हमारे जीवन में हो रही He है। is working behind the scene. आइए हम विश्वास करें कि वो सबके बीच में हमारे लिए कार्य को कर रहा He है। is working even when things seem silent. वो उस समय भी काम कर रहा है जब सब कुछ शांत है। Let us expect greater things from God. आइए हम कुछ बड़े कार्य को प्रभु यीशु मसीह से उम्मीद को करें। As William Carey once said, जैसे विलियम कैरी ने एक बार बोला, expect great things from God and attempt great things for God. आइए हम बड़े काम की आस ना करें प्रभु यीशु मसीह से और बड़े कार्य को करें उसके लिए। He is designing something for you. आपके लिए वो कुछ बड़े काम का वर्क को बना रहा है। Can we pray this evening? क्या आइए हम प्रार्थना करें शाम को। Father, we submit our lives to you. पिता हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। Lord, we do believe in you. हम आपके ऊपर विश्वास को करते हैं। When things seem silent, जब सब कुछ शांत हो, when we are not able to see anything, जब हम कुछ भी नहीं देख सकते, when all things go against our जब expectations, सब कुछ हमारे जो हमने सोचा उसके विपरीत हो, Lord, still we believe in you. हम उस समय भी आपके ऊपर विश्वास Lord, को करते still हैं। we trust you in the midst of all the situations that we go through. हम उस सब के बावजूद भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से हम विश्वास को करते हैं। Lord, we believe that you are a God who works even beyond our expectations. आप एक ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे कल्पनाओं से भी हम उससे बढ़कर काम को करते हैं। Lord, give us a heart to fully trust in you. आप एक ऐसा हृदय दें कि हम पूर्ण रूप से आप पर विश्वास कर पाए। Lord, help us to follow you like this Canaanite woman. आइए हम परमेश्वर आप हमको मदद करें कि जैसे इस कनानी स्त्री ने आपके पीछे चले उसी प्रकार हम भी आपके पीछे Worshipping you in the midst of all situations. कि हम आपकी आराधना कर पाए हर परिस्थिति में, Believing you in the midst of all situations. विश्वास करने पाए कि हम हर परिस्थिति में, Following you in the midst of all आपके situations. पीछे चल पाए हम हर परिस्थिति में, So that we will hear on that day, good and faithful servant, you was faithful in little and I will make you in charge of many things. उस समय हमें आप ये सुन पाए कि तू एक अच्छा और विश्वास योग्य दास है, कि तू छोटे काम में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बड़े कार्य को दिखाऊंगा, बड़े काम के लिए विश्वास योग्य ठहराऊंगा। And to that extent, और उस समय तक we submit each of our lives in your hand. हम सब अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, work in each of our life. परमेश्वर आप हमारे जीवन में Help कार्य us को to be करें। faithful and fruitful in your sight. परमेश्वर हम अपने जीवन में हमको फलवंत बनाओ और अपने Help us to live a life worthy of your calling. आप मदद करें कि आपके बुलाहट के अनुसार हम जीवन Thank you जी for पाएं। hearing and answering your prayers. आपका प्रार्थना सुनने के लिए We धन्यवाद। give you all glory, honor and praise. हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। In Jesus' most precious name we do pray. प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you once again, Jinjan sir, for this opportunity. May God bless you all.